Can you hear me? Okay, ma'am, start. Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is urea cycle and metabolism of ammonia. As you all know that urea is a byproduct of different kinds of products, different kind of chemicals which are produced inside the body. I will discuss the urea cycle and under the following headings. First, the overview of urea cycle, then the reactions of urea cycle, rate limiting reaction of urea cycle, fate of urea, overall stoichiometry of urea cycle, and regulation of urea cycle. Urea cycle is a very important topic and कोई ना कोई क्वेश्चन MCQs वाइवा इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है. So first we'll see what is basically the urea cycle. Urea is a major end product of nitrogen metabolism in humans and mammals. Ammonia, the product of oxidative deamination and is toxic even in small amount, must be removed from the body in the form of urea. Ammonia is converted into less toxic nitrogen containing compound, that is urea, by urea cycle in the liver. Urea is then transported to kidneys and is excreted from the body. Reactions of the urea cycle. It has total 5 reactions. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कि फर्स्ट टू रिएक्शंस जो है ना वो यूरिया साइकिल के वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और जो रिमेनिंग है वो होते हैं साइटोसोल ऑफ सेल के अंदर. एंड स्टेप 5 जो है दैट अकर्स ओनली इन द लिवर. These 3 points are very important. The first 2 reactions occur in mitochondria, rest of the reactions occur in cytosol, and the last reaction occurs in liver. This is a simple diagram of urea cycle taken from Lippincott. इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. इसमें आप देख लें पॉइंट नंबर 1 ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट प्रोवाइड्स द कार्बन एटम ऑफ यूरिया. And second is the free ammonia provides one of the nitrogen atoms of urea. एंड इसमें जो प्रोडक्ट्स चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि एंजाइम जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उसमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ एन एसिटाइल ग्लूटामेट विच एक्ट्स एज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर. और बाकी के स्टेप्स जो हैं ये मैं आपको 1 by 1 बताती जाती हूँ. ठीक है. दिस इज अनदर सिंपल डायग्राम ऑफ यूरिया साइकिल. और आप लोगों ने लिपिन-कॉट वाली करनी है. ठीक है. अच्छा फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका रेट लिमिटिंग रिएक्शन कौन सा है बिकॉज ये तो लाजमी पूछा जाता है. उसमें MCQs में या कोई क्वेश्चन भी आ सकता है या वाइवा में भी पूछा जाता है. स्टेप 1 जो है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट. दैट इज द रेट लिमिटिंग रिएक्शन ऑफ यूरिया साइकिल. And carbamyl phosphate is strongly activated by N-acetyl glutamate, which overall controls the rate of urea production. मीन्स कि अगर N-acetyl glutamate की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो यूरिया ज़्यादा बनेगा, यूरिया साइकिल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. और अगर कम होगी N-acetyl glutamate तो कार्बोमाइल फॉस्फेट भी कम बनेगा और यूरिया साइकिल की प्रोडक्शन भी कम होगी. N-acetyl glutamate actually exerts a positive allosteric effect for carbamyl phosphate synthetase 1. And N-acetyl glutamate की जो production है that is dependent upon protein. The more protein we take in diet or the more protein our body produce, there is more production of N-acetyl glutamate and similarly more production of more carbamyl phosphate synthetase 1. फेट ऑफ यूरिया क्या है कि सबसे पहले यूरिया जो है इट डिफ्यूजेस फ्रॉम द लिवर and is transported into the kidneys where it is filtered and excreted in the urine. जब भी यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करवाया जाता है यूरिन आरी जिसको कहते हैं
तो उसमें सम क्वांटिटी ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं कभी आपने रिपोर्ट देखी हो तो उसमें लिखी हुई होती हैं। पोर्शन ऑफ द यूरिया जो है वो कुछ इंटेस्टाइन्स में भी चला जाता है हमारे, and is cleaved to carbon dioxide and ammonia by bacterial urease, and this ammonia comes out in feces and is partially reabsorbed into the blood. Fate of urea. This diagram shows a simple illustration of the fate of urea. एक तो यूरिया साइकिल जो है वो लिवर के अंदर हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, देखें आप, और उसमें सम क्वांटिटी जो है दैट इज गोइंग इनटू द रीनल सिस्टम एंड पोर्टल सर्कुलेशन से हमारे पास यूरिया आ रहा है सारा, और उसके बाद जो सम यूरिया जो है वो जा रहा है इंटेस्टाइन्स में, और उसके ऊपर ये वाले एंजाइम यूरियाजेज और प्रोटीएजेज एक्ट कर रहे हैं, वहाँ से अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है और वो अमोनिया माइन में कन्वर्ट हो रहा है, और वो या तो फीसिस में निकल जाएगा या फिर वो कुछ अमोनिया दोबारा पोर्टल सर्कुलेशन में वापस चला जाएगा। अच्छा, अब जो जिन पेशेंट्स में किडनी फेलियर होता है या जिनको कोई किडनीज का प्रॉब्लम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि यूरिया जो है वो हमारी बॉडी से सही तरह से एक्सक्रीट नहीं होता, इट टेंड्स टू एक्यूमुलेट इनसाइड द बॉडी, एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो किडनी से फिल्टर नहीं होगा तो वो यूरिया जो है वो सारा गट में चला जाएगा, एंड उस केस में जब वो गट में चला जाएगा तो ज़्यादा जो एंजाइम्स हैं, बैक्टीरियल एंजाइम यूरिएज और जो और एंजाइम्स हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा एक्ट करेंगे और उसकी वजह से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगा, और ऐसे लोगों में हाइपर अमोनीमिया होता है। इसीलिए किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें अमोनिया की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज उनकी किडनी सही तरह से यूरिया फिल्टर नहीं करती और वो यूरिया जो है वो सारा इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को हम काउंटर एक्ट कैसे करते हैं और ट्रीट कैसे करते हैं कि वी गिव ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नियोमाइसिन which reduces the number of intestinal bacteria responsible for ammonia production. Overall stoichiometry of urea cycle क्या है कि whenever aspartate, ammonia, carbon dioxide and 3 molecules of ATP in the presence of water are combined, they produce urea, fumarate, 2-ADP, AMP, inorganic phosphate जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब इन सारे इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द स्टोकियोमेट्री ऑफ यूरिया साइकिल, तो उसमें आपने ये बताना है कि इसमें कौन कौन से एटम्स या कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज हो रही हैं। एक तो ये है कि इसमें 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर कंज्यूम्ड इन द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, ठीक है। उसके बाद ये कि and the synthesis of urea is irreversible with a large delta G negative, ठीक। और इसमें 2 नाइट्रोजन एटम यूज हो रहे हैं, एक नाइट्रोजन जो है वो आ रही है अमोनिया से और दूसरी वाली जो है वो हमारे पास एस्पार्टेट से आ रही है। और अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखें तो एस्पार्टेट वाली नाइट्रोजन और जो अमोनिया वाली नाइट्रोजन है वो बेसिकली ग्लूटामेट से आ रही है, बिकॉज ग्लूटामेट जो है वही अल्टीमेटली डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और ट्रांसएमाइनेशन के थ्रू वो हमारे पास एस्पार्टेट और अमोनिया प्रोड्यूस करता है, और एस्पार्टेट की नाइट्रोजन और अमोनिया की नाइट्रोजन जो है दैट इज बेसिकली यूज फॉर यूरिया साइकिल। फिर आ जाती है कि व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। शुरू में मैंने आपको बताया कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके थ्रू यूरिया साइकिल जो है वो ज़्यादा या कम हो सकता है। तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट इज एन एसेंशियल एक्टिवेटर ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट 1, फॉस्फेट सिंथेटेज 1, एंड इट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप इन द यूरिया साइकिल। एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है वो कहाँ से आता है, एसिटाइल को एंजाइम ए, ग्लूटामेट और आर्जिनिन जो है इसमें एज एन एक्टिवेटर यूज होता है। और पहले मैंने आपको बताया कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट की जो प्रोडक्शन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी प्रोटीन इनटेक।
प्रोटीन इनटेक एंड प्रोटीन प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। प्रोटीन इनटेक अगर ज्यादा है तो इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, यूरिया साइकिल ज्यादा होगा। बिकॉज जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास ग्लूटामेट प्रोवाइड करेंगे, ग्लूटामेट से नाइट्रोजन आएगी और वो एन-एसिटाइल ग्लूटामेट को ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देगी और इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ यूरिया साइकिल होगी। ये वही पिछली वाली स्लाइड है कि एसिटाइल को ग्लूटामेट जब कंबाइन करेंगे तो एन-एसिटाइल ग्लूटामेट बना देंगे। एंड एन-एसिटाइल ग्लूटामेट जो है दैट इट्स प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन how much quantity of protein we take in our diet, and that activates the enzyme carbamyl phosphate synthetase 1, which is a rate limiting step of urea cycle। ये यूरिया साइकिल के जो है वो निमोनिक्स हैं, एंजाइम्स के भी और पाथवे के भी। अब पाथवे मैं आपको बता देती हूँ। ओके, दिस इज द सिंपल पाथवे। मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट टू रिएक्शंस हैं वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जो बाकी रिएक्शंस हैं वो होंगे हमारे पास साइटोसोल ऑफ सेल के अंदर, और जो लास्ट वाला जो रिएक्शन है वो हमारे पास होगा लिवर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि ये जो वॉल सी एक बनाई हुई है, ये पिंक कलर की जो डबल लाइन से शो की हुई है, दैट शोज दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियल की डबल मेम्ब्रेन ये इन्होंने शो की हुई है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ये। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है कि एल ऑर्निथीन जो है दैट कंबाइंस विद हाइड्रोजन, एल ऑर्निथीन दैट कंबाइंस विद सिट्रुलिन एंड इट फॉर्म्स एल सिट्रुलिन, ठीक है। सबसे पहले जो है वो एल ऑर्निथीन एल सिट्रुलिन के साथ कंबाइन करके सिट्रुलिन हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन हो रही है उसकी। उसके बाद सिट्रुलिन जो है उसमें अगर हम एटीपी ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, एस्पार्टेट बन जाएगा। और उसमें अगर फर्दर जो है वो आगे वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू आर्जिनोसक्सिनेट विद द एडिशन ऑफ द आर्जिनिन मॉलिक्यूल। अब उसके बाद जब फर्दर एंजाइम की एक्शन होगा लाइज एंजाइम का, तो यहाँ पे हमारे पास एल आर्जिनिन बन जाएगा। और एल आर्जिनिन के ऊपर जब आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो वो हमारे पास दोबारा से एल ऑर्निथिन बन जाएगा, जो दोबारा से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होगा, और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे पास जो चीजें यूज हो रही हैं दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमारे पास यूज हो रहे हैं। और नाइट्रोजन एटम कहाँ से आ रहे हैं? नाइट्रोजन एटम एक तो आ रहा है हमारे पास अमोनिया से, और दूसरा वाला आ रहा है एस्पार्टेट से। फिर ये जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर यूज हो रहा है, सॉरी, ये जो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर यूज हो रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? N-acetyl glutamate, and that is basically the rate limiting reaction of the urea cycle। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है कि सिट्रुलिन इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो सेकंड जो एस्पार्टेट हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन जहाँ से आ रही है, तो अमोनिया the amino group of aspartate provides one of the nitrogen atoms of urea। उसके बाद हमारे पास सिक्स पॉइंट क्या है कि आर्जिनोसक्सिनेट और एल आर्जिनिन के बाद हमारे पास ऑर्निथिन दोबारा से रीजनरेट हो रही है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर हो जाएगी। सेवन पॉइंट उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो एल एस्पार्टेट बनने के साथ जो हमारे पास ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हो रहा है उसके थ्रू जो ऑक्सैलो एसीटेट प्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज बेसिकली ट्रांसअमाइनेटेड टू एस्पार्टेट। And eighth point में they are showing that tissues other than liver use enzymes of this pathway to make arginine। आपने इसका जो है इसकी लोकेशन आप लोगों ने याद करनी है कि इसके रिएक्शंस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल और लिवर के अंदर, और इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं।
रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या है, किस चीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ऑन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, और नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है, एस्पार्टेट से और अमोनिया से। और इसमें जो रेट लिमिटिंग स्टेप है, जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है, दैट इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, that is dependent upon N-acetyl glutamate for its production and for its regulation। और उसके बाद जो सिट्रोलिन है वो एल ऑर्निथीन के बाद जो सिट्रोलिन हमारे पास बन रहा है, सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के साइटोसोल में आएगा, वो आगे आर्जिनोसक्सिनेट बना देगा। आर्जिनोसक्सिनेट में जब आर्जिनिन को ऐड करेंगे तो वो एल आर्जिनिन बना लेगा, एल आर्जिनिन दोबारा से ऑर्निथिन बना देगा, और ऑर्निथिन दोबारा से एंटर हो जाएगा इनटू माइटोकॉन्ड्रियन। अब इसके जो एंजाइम्स हैं बीच बीच में लिखे हुए, वो इस तरह से याद करने तो काफ़ी मुश्किल है। आप इसमें देख लें कि इसका जो नमूने मुझे कहीं से मिला था, ऑरेंज कलर कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेलाज। इसमें ऑरेंज स्टैंड फॉर ऑर्निथीन, कलर स्टैंड फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट, सी स्टैंड कैट्स का जो सी है दैट इज सिट्रोलिन, ऑलवेज इज फॉर एस्पार्टेट, आस्क इज फॉर आर्जिनोसक्सिनेट, फॉर इज फॉर फ्यूमरेट, एंड ऑसम इज फॉर आर्जिनिन, एंड अम्ब्रेलाज इज फॉर यूरिया। इसमें अगर आप क्योंकि लिपिन कॉर्ड में ये फ्यूमरेट वाला स्टेप है, सच उन्होंने इंक्लूड नहीं किया हुआ, दो कि ये इंक्लूडेड होता है बीच में, तो आप इस फॉर को बीच में से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप इसका जो सीक्वेंस है वो याद रख सकते हैं, बिकॉज इसकी जो चीज़ें हैं वो अक्सर औकात भूल जाती हैं पेपर्स में लिखते वक्त, और जहन से निकल जाती हैं। अब एंजाइम्स इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, इसमें देख लें। कैन स्टैंड्स फॉर कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1, आर स्टैंड्स फॉर ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, आर्न स्टैंड फॉर आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, और एम स्टैंड फॉर आर्जिनोसक्सिनेट लाइज, एंड एक्यूरेटली स्टैंड्स फॉर आर्जिनेज एंजाइम। तो इस तरह से आप इसके एंजाइम्स और सीक्वेंस जो है वो याद रख सकते हैं। फिर आ जाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया इज बेसिकली toxic substance which is produced by all the tissues of human body during the metabolism of a variety of compounds, and it is disposed of primarily by formation of urea in the liver. However, the level of ammonia in the body must be kept very low, because higher concentration may it is very toxic for the central nervous system. And in our body there is a metabolic mechanism for removing ammonia in the form of urea. सोर्सेज ऑफ अमोनिया देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सोर्सेज ऑफ अमोनिया जो हैं दैट इज ये कलर्स से जो शो की हैं, दीज शो द सोर्सेज ऑफ अमोनिया। एक तो ये कि प्यूरिन pyrimidine कैटाबोलिज्म, ग्लूटामेट है, एस्पेरेजीन है, अमाइनो शुगर्स हैं, और बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया also produces ammonia in our body. फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया इन सर्कुलेशन। ऑल्दो अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होता रहता है, बट इट्स कंसंट्रेशन इज केप्ट लो ड्यू टू टू फैक्ट्स। एक तो ये कि देयर इज रैपिड रिमूवल ऑफ अमोनिया बाय द लिवर, एंड मैनी टिश्यूज जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं दे रिमूव अमाइनो एसिड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूटामिन और एलानिन। फ्री अमोनिया जो है वो मसल्स रिलीज नहीं करते, बिकॉज दैट इज वेरी टॉक्सिक टू सेल्स एंड टिश्यूज। But the most important disposal of ammonia is by the help of liver and urea cycle. Urea travels in the blood from liver to kidneys, where it is passed into the glomerular filtrate. फिर सेकंड जो इसकी फॉर्म है नॉन टॉक्सिक फॉर्म ऑफ अमोनिया स्टोरेज, दैट इज द ग्लूटामिन।
Formation of glutamine occurs primarily in the muscles and the liver, but it is also important in the CNS, where it is the major mechanism for removal of ammonia from the brain. ग्लूटामिन जो है वो हमारी बॉडी में प्लाज्मा में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर अमीनो एसिड्स. जो भी ये बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है ग्लूटामिन, वो लिवर से रिमूव होता है एंड इट इज डीएमिनेटेड बाय एंजाइम ग्लूटामिनेज. और लिवर में क्या होता है कि जो अमोनिया डिटॉक्सिफाई होता है, दैट इज यूज फॉर दी एक्सक्रीशन ऑफ, जो भी अमोनिया यूरिन में निकलता है वो क्या होता है कि दैट इज यूज फॉर दी एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया माइंस. Glutamine, when combines with water, it also releases ammonia and itself is converted into glutamate. Levels of serum ammonia जो है normally these are 5 to 35 micromoles per liter. That is very low level. But in case if the liver function is compromised either due to genetic defects of urea cycle or liver disease, blood levels can rise above 1000 micromoles per liter. And this type of hyperammonemia is a medical emergency. It is very neurotoxic for CNS. And the symptoms associated with the ammonia intoxication are tremors, slurring of speech, somnolence, vomiting, cerebral edema, and blurring of vision. And at very high concentrations, ammonia can cause coma and death. There are basically two types of hyperammonemia: acquired and genetic. Acquired hyperammonemia is due to liver disease, for example, some viral hepatitis, and use of toxins such as alcohol, cirrhosis of liver. And genetic may be due to some enzyme deficiencies like ornithine transcarbamylase deficiency. And this is the most common of disorders affecting males, X-linked. Some other disorders like autosomal recessive inheritance can also cause genetic hyperammonemia. And इस केस में क्या होता है कि the babies which are born are incapable of synthesizing urea, which leads to hyperammonemia during the first weeks following birth. इसकी ट्रीटमेंट यही है कि प्रोटीन इंटेक कम कर दें, बिकॉज ज़्यादा प्रोटीन होगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी अमोनिया की और ज़्यादा यूरिया की. एंड सेकेंडली हम ये कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हम दे सकते हैं जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करें और उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें. फॉर एग्जांपल फिनाइल ब्यूटारेट, which converts glutamine to more excretable form, that is phenyl acetyl glutamine. Treatment of patients includes phenyl butyrate. फिर second deficiency is due to argininosuccinase deficiency. In these patients, the level of arginine drops. So step 5 of urea cycle, that is the arginine to ornithine, will not be able to move forward
due to low levels of substrate. This decreases the amount of urea formed. This problem is also treated by decreasing the total protein intake and increasing the intake of arginine. एंड जो भी आर्जिनोसक्सिनेट बॉडी में कन्वर्ट हो बॉडी में प्रोड्यूस होता है और एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज. ओके दैट्स ऑल. अब आप ब्रेक ले लो 5-10 मिनट्स की, फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार. ओके स्लाइड नंबर 3. इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन ही बताया हुआ यूरिया का कि यूरिया इज द मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमंस एंड मैमल्स. और नीचे अमोनिया का जो बात है वो इसलिए किया है मैंने बिकॉज अमोनिया जो है दैट इज द मोस्ट टॉक्सिक ऑफ केमिकल्स दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी. एंड अमोनिया इज अ मेजर प्रोडक्ट जिससे यूरिया बनता है. और अमोनिया being very ammonia being most toxic, it is converted into less toxic nitrogen containing compound urea by urea cycle in the liver. And from the liver the urea goes into the kidneys, and from kidneys it is excreted.